Ladies and gentlemen, if I say you have only one day left to live, what will be your reaction? Let me tell you. Some of you will be repenting for your sins. Some of you will be regretting what choices they have made in this life, and some of you will be regretting कि काश मैं इस दुनिया में कुछ बेहतर चीजें कर लेता. So why not change ourselves right now? Let's start today's video with a quote. The successful person has the habit of doing things the failure doesn't like to do. That is why I emphasize so much on building your mindset and your character. Why? Because I want you to become the best version of yourself, and you only have this option. इसके अलावा you don't have any other option. You just have this option to become the best version of yourself. You know, just about a year ago, I was indulged in some practices that were really harmful for me. जैसे when something fascinates you or you start doing it for fun. जैसे आजकल वेपिंग चल रही है, हर छोटा बच्चा, टीनेज 14-15 इयर्स का बच्चा, हर एज कैटेगरी के लोग ये चीज़ कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनको ये फन लगती है. When I pondered over it, I immediately realized कि यार ये मेरी हेल्थ के खिलाफ है, मेरी हेल्थ के ऊपर ये अफेक्ट कर रहा है, और immediately I left it. So the moral is learning, growing, improving and iterating. This is the cheat code to success. I am telling you these 4 things: learning, growing, improving and iterating. This is the cheat code to success. Just write it down: learning, growing, improving and iterating. So after this event, I started improving myself, growing myself day by day, or at that very moment I implemented 3 things जो उस वक्त से लेकर अब तक चल रही हैं. These 3 things I started implemented it, और honestly जो results I wanted मुझे मिल गए. So without further ado, let's get started. So at number 1, we have the most underrated and misinformed thing, which is called meditation. अब बहुत से लोग meditation को योगा समझते हैं. Although they are very similar, but not the same. Now the question arises, why should we meditate? Before answering it, you need to understand the benefits of it. So meditation जो है, it increases your focus and literally your concentration rate skyrockets. Your attention span literally increases. So what you need to do is Google पे जाएं, मेडिटेशन के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें, और एक बुक है, इट्स कॉल्ड 365 मेडिटेशन. हसन यहाँ पे पॉपअप भी कर देगा कवर पेज. तो इस बुक को आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको पढ़ें, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका फोकस रेट और अटेंशन स्पैम बहुत इंक्रीज़ कर जाता है. जब आप एक चीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ करने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, कोई काम करने लगे हैं, आपके दिमाग के अंदर काफ़ी ज़्यादा ख्याल आएंगे. तो मेडिटेशन से क्या होता है कि ये ख्याल आपके काम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो आपका जो अटेंशन रेट है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से आपका फोकस जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत बेहतर हो जाता है. सो आई हाईली रिकमेंड यू कि प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट. अच्छा, और ये करना कब है कि जब आप सुबह उठे, जिस मर्जी टाइम पे, 8, 9, 5, 6, जब उठने के बाद पानी शानी पिया, 2-3 ग्लास पानी पिए, उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू मेडिटेट फॉर अबाउट 10 मिनट्स. स्टार्ट विद 10 मिनट्स या 5 मिनट, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हासिल करते जाएं, आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाए, तो आप ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ना टाइम बढ़ाते जाएँ. सो आई हाईली रिकमेंड यू डूइंग मेडिटेशन. और जब मैंने ये किया, मेरा अटेंशन स्पैन लिटरली स्काई रॉकेट, और मेरे बहुत से काम जहाँ पे मुझे 2 घंटे लगने थे, वहाँ पे लिटरली 1.5 घंटा 1 घंटा लगने लग गए, शुरू हो गया टाइम. तो इस तरह से आपका फोकस बहुत बढ़ जाएगा विद मेडिटेशन. द सेकेंड थिंग आई स्टार्टेड डूइंग वॉज, आई नो इट्स एक्चुअली क्वाइट फनी, क्योंकि दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु हेटेड दिस थिंग. सो द थिंग आई स्टार्टेड डूइंग वॉज, आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स. I still remember when I was in grade 6, I switched
from the ratta system to critical thinking system, जो कि which was quite unusual for me. और I still remember clearly it was my first day, और the teacher asked me कि बेटा आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो या आप कोई बुक्स पढ़ते हो. मैंने कहा yes miss, I read Alchemist. तो Alchemist मैंने पूरी पढ़ी भी नहीं थी, मैंने सिर्फ मेरे पास थी लेकिन मैं इसका खोल के आज तक देखा भी नहीं था, सिर्फ कवर पेज था. तो कवर पेज के ऊपर लिखा हुआ था Alchemist. तो मैंने टीचर को वो कहा, और मैं अपने दोस्तों को उस टाइम भी कहता था यार ये क्या पढ़ रहे हो, वो कोई हैरी पॉटर पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है. और उस वक्त आई डिडंट रियली नो कि यार देयर आर डिफरेंट जॉनरास और आप अपने स्पेसिफिकली किसी एक टॉपिक को पढ़ सकते हो. और मुझे उस वक्त नहीं पता था क्योंकि मैं उस वक्त ग्रेड 6 में था. और जैसे जैसे आई स्टार्टेड टू इम्प्रूव माई सेल्फ और व्हेन आई स्टार्टेड टू रिसर्च ऑन दीज टॉपिक्स, आई रियलाइज्ड कि यार जितने मल्टी मिलियनियर्स हैं और जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सब एक चीज़ ज़रूर करते हैं कि वो बुक्स पढ़ते हैं. अब ऑब्वियसली मुझे उस टाइम नहीं पता था कि नॉन फिक्शनल बुक्स भी होती हैं, लेकिन व्हेन आई केम टू नो अबाउट कि एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बुक्स पढ़ते हैं, तो उसके बाद मैंने भी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी. सो दोज हु हेट रीडिंग बुक्स, गाइस, नोबडी केयर्स. किसी को नहीं फ़र्क पड़ता आप अमीर हो आप गरीब हो, किसी को नहीं फ़र्क पड़ता अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हो, लेकिन इट्स कमिंग फ्रॉम द वन हु हेटेड द बुक्स. और जो अपने दोस्तों को भी मना करता था, लिटरली जो अपने दोस्तों को भी मना करता था कि यार तू क्या पढ़ रहा है, इसको बंद कर, मैं तेरे साथ नहीं बैठना, मैं साफ ही कहता था. सो दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु हेटेड रीडिंग बुक्स, और अब जिसके पास लाइब्रेरी बनी पड़ी है, ठीक है. तो मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स भी करते थे, और आई हाईली रिकमेंड यू कि जस्ट स्टार्ट रीडिंग बुक्स. और इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अपनी पर्सनली जो बुक्स मुझे अच्छी लगी हैं और that really come in handy, I will be sharing the list पूरी की पूरी. तो I hope कि those who hate reading books, please start reading them, because it is one of the best habits I implemented, or that gave me the results and insights on some topics जो YouTube पर, जो Google पर नहीं मिलते. Okay, so with this being said, the last habit, which is somehow interlinked with the second habit, is being proactive. So what is proactive? Proactive simply means कि removing feelings from an action. कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, it has to be done. So simply remove feelings from what you are currently doing. या आसान अल्फाज में किसी भी चीज़ में अपना जो दिल है ना वो नहीं लेकर आना. कि आपको अगर कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा तो आप वो नहीं कर रहे. भाई जो चीज़ ज़रूरी है, इट हैज़ टू बी डन. सो जस्ट रिमूव द फीलिंग. भाई आपके अब्बू को, कोई किसी बंदे को भी मेहनत करना पसंद नहीं होता. आपके पेरेंट्स को या आपके वालिद को बाहर जाके कमा के लाना पसंद नहीं है, लेकिन ही स्टिल डज इट. क्यों? क्योंकि इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स हिज ड्यूटी. तो किसी भी चीज़ में दिल का आना या फीलिंग्स आना, just remove it. So this is what actually is being proactive. You know, ये चीज़ आप जितनी जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब करोगे, इसे एसिमिलेट करोगे, इसमें आपका ही फ़ायदा है और किसी का फ़ायदा नहीं है. You know what the harsh reality is? That the world is ruthless. Nobody cares. The world is ready to kill you whenever it gets a chance. जब आप compete करते हो ना लोगों के अगेंस्ट, इस दुनिया में ऑब्वियसली आप अकेले तो नहीं आए, मैं अकेला तो नहीं आया. वी compete against other humans. तो जब आप compete करते हो, everybody is ready to kill you. Everybody, whenever they get a chance, कोई आपकी लेग पुलिंग करेगा, कोई आपकी प्रमोशन ही होने देगा. Everybody is trying their best to kill you, or you have to survive on your own. So being proactive is the best habit you can implement in this age to survive. So with this being said, you have to understand that private victories precedes public victories. अब अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर देखें, हमें सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ, पैसा, लड़कियाँ,
हमें मिलियनियर्स हमें सिर्फ यही दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है। आपको ये बिल्कुल नहीं पता कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल की है, कितनी एफर्ट्स की हैं ताकि वो जहाँ पर अब हैं वहाँ तक पहुँच सकें। दे हैव अचीव्ड प्राइवेट विक्ट्रीज बिफोर देन पब्लिक विक्ट्रीज। जो आप देख रहे हो वो पब्लिक विक्ट्रीज है। घड़ी पहनी है, पब्लिक विक्ट्री है। रोलेक्स है, पब्लिक विक्ट्री है। लैम्बोर्गिनी है, बड़े घर हैं, पब्लिक विक्ट्री है। लेकिन इन ऑर्डर टू गेट दोज थिंग्स यू हैव टू अचीव प्राइवेट विक्ट्रीज। छोटी छोटी चीज़ों से छोटी छोटी विक्ट्रीज जिनको लोग नहीं देख रहे, उनसे प्राइवेट पब्लिक विक्ट्रीज बनती हैं। सो रिमेंबर, इन ऑर्डर टू अचीव public victories you have to achieve private victories, so try to get as many as you can. Incorporating these 3 habits, meditation, reading books and being proactive, has had a profound impact on my life. और I highly recommend ये 3 चीज़ें। क्योंकि मैंने की हैं, इस मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैं सिर्फ वो बातें करता हूँ जो मैंने इम्प्लीमेंट की हूँ और इन रिटर्न मुझे उसका फ़ायदा मिला। ऑलराइट, सो आई होप कि आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये 3 चीज़ें अगर आपने इम्प्लीमेंट कर ली तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जस्ट लाइक दोज 12 हैबिट्स आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस और उससे प्रीवियस वीडियो। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दोज 2 वीडियोज़। एंड जो आज मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज़ स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। So that was it from my side. Thank you so much for watching this video. I hope to see you in the next video. Keep grinding, keep hustling, and stay hard.